Okay, students, now we are moving on to the next topic, that is insurance. Okay. And the next topic is insurance. Fine. Now, insurance is basically a contract between two parties whereby one party agrees to cover up or indemnify the loss being suffered by the other party for a consideration in the form of money known as premium. Okay, so it is a contract between two parties. Okay, to indemnify or cover up the loss being suffered by other in consideration certain sum of money, which is known as प्रीमियम. ओके, तो आप क्या कर रहे हो, आप एक सर्टेन सम ऑफ फंड्स पे कर रहे हो. ओके, इन द कंसिडरेशन ऑफ कवरिंग, इन कंसिडरेशन टू कवर द लॉस बीइंग सफर्ड बाय वन पार्टी. ओके, अब ये लॉस किस तरह से, फायर का हो सकता है, थेफ्ट का हो सकता है, मैरीन का लॉस हो सकता है, लाइफ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट से डेथ हो सकती है. ओके, तो ये आपके पास वेरियस टाइप्स ऑफ लॉसेस यू कैन सफर ऑन डे टू डे बेसिस, एंड दीज लॉसेस आर बीइंग covered up with the help of insurance companies for a consideration which is known as premium. Okay, तो जो पार्टी, जो इंडिविजुअल, यहाँ पे एक पार्टी है जिसको कहते हैं इंश्योरर, दूसरी पार्टी है इंश्योर्ड. ओके, एक पार्टी का नाम है इंश्योरर और दूसरी पार्टी का नाम है इंश्योर्ड. ये क्या करता है, indemnifies the loss suffering party. ओके, जिसको हम कहते हैं इंश्योर्ड. और इंश्योर्ड क्या करता है, he pays a certain sum of money as premium to get indemnified. Okay, and then there is insurance policy. This is the agreement being issued by insurer to insured, explaining terms and conditions of safeguarding the individual
द इंश्योर्ड। ओके, तो ये आपके पास तीन एस्पेक्ट्स हैं। इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट विच इज साइन बिटवीन द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड। इंश्योरर कौन है? इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योर्ड कौन है? जो इंडिविजुअल अपने आप को अपनी इंश्योरेंस करवाता है। और इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है? एक एग्रीमेंट है जो इशू किया जाता है by the insurance company, which is also known as insurer, to insured, which explain the terms and condition on the basis of which the relief will be provided to the insured in case he suffers certain type of loss। तो ये इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस का एस्पेक्ट है। ओके, अब हमारे पास क्या है कि फंक्शंस क्या हैं इसके। यहाँ पे आ जाते हैं हम फंक्शंस के, इंश्योरेंस के फंक्शंस बेसिकली। ओके, तो द वेरियस फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस आर, फर्स्ट इज इट प्रोवाइड्स the certainty, provides certainty। Okay, provide certainty means it assures the insurer that in case he suffer, in case it provides certainty or removes uncertainty from the mind of insured and relieves him from the stress that in case insured suffers certain loss, okay, how he will recover that, okay. This uncertainty of recovery of losses is being removed away by the insurer or insured or the insurance company, that insured will carry out his business activities in a very peaceful manner, because he is certain that he has insured himself, he has covered up his risk, and in case he suffers certain kind of risk while carrying out the business activities, he will be repaid, or he can recover that loss which he has suffered, and that loss must not has been deliberately created, deliberately done by the insured। Okay, तो डेलिब्रेट नहीं होना चाहिए। अगर एक नेचुरल वे में, नेचुरल प्रोसेस में आपने कोई लॉस सफ़र किया है, तो आप उस लॉस को रिकवर कर सकते हो। यहाँ इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरर जो है वो आपको एक गारंटी देता है कि आप इस लॉस को रिकवर कर सकते हो इफ़ यू हैव सफर्ड एनी फॉर्म ऑफ लॉस, ओके, आफ्टर यू हैव एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट विद द इंश्योरेंस कंपनी। तो ये एक सर्टेनिटी प्रोवाइड करता है कि आपको कि आप अपने लॉसेस को रिकवर कर सकते हो। सेकंड इज इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। ओके, सो इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, एंड दैट इज it provides protection in the way that it cannot recover, it cannot protect you against the loss, but it can help you in recovering that loss, okay. It can protect your interest and can safeguard your business from suffering
unwanted losses because of which the business can come to an end. So that problem is being protected by the insurance company by providing you an insurance cover, that in case you are suffering certain type of loss, that loss can't be avoided, but your interests can be protected over a period of time, that you will get the financial aid, the financial protection from the insurance company, and hence you can restart or you can rework on your business and can restart your business activities, and hence you can earn, you can carry out in a your business in a proper manner. तो ये आपके पास एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, मगर वो आपके लॉसेस को नहीं कम कर रहा है, आपके लॉसेस को कवर अप नहीं कर रहा है, ना वो ऐसी एक कंडीशन क्रिएट कर रहा है कि आपको कभी लॉस ही नहीं होगा, बट ये कंडीशन क्रिएट कर रहा है कि अगर आपको लॉस हो जाता है तो आपका इंटरेस्ट जो है उसे प्रोटेक्ट किया जा रहा है financially by providing you the financial aid, by providing you the financial help in case of the loss you have suffered, so that you can rework on your business activities and you can restart your business as it would have been before the losses you have suffered. तो ये आपको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है इंश्योरेंस कंपनी. ओके, देन देयर इज, it helps in sharing risk sharing. Okay, the another important aspect is, if you have not insured yourself, you will have to suffer a whole loss on your own. बट अगर आपने अपने आप को इंश्योर करवा लिया है, आप एक एग्रीमेंट में एंटर कर गए हो इंश्योरेंस के साथ, तो जो भी लॉसेस हुए हैं, nobody says that you will get 100% recovery of the losses you have suffered, but at least you will recover to the maximum level so that you can restart your business activities. तो इसमें क्या है, रिस्क शेयरिंग का मतलब ये है कि जो लॉस आप सफ़र कर रहे हो उसमें कुछ लॉस तो आपको बियर करना पड़ेगा, बाकी इंश्योरेंस कंपनी बियर कर रही है और वो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया इन द फॉर्म इन ल्यू ऑफ बियरिंग अप दैट पर्टिकुलर लॉस विच यू हैव सफर्ड. तो यहाँ जो आपका, क्योंकि अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि इंश्योरेंस में सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी ही शेयर नहीं करती है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग इंश्योर हो रहे हैं और हम एक अंडरस्टैंडिंग लेके चलते हैं, इंश्योरेंस कंपनी एक अंडरस्टैंडिंग लेके चलती है कि हर एक साल में 10% या 15% या 20% लोग ही लॉस सफ़र करेंगे, बाकी लोगों का पैसा ऐसे के ऐसे बिजनेस में इंश्योरेंस कंपनी में रहेगा जिस पे वो अर्निंग्स करते रहेंगे. तो जो लॉस है वो सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी नहीं, वो बाकी जितने भी लोग अपने आप को इंश्योर करवाते हैं वो भी अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन देके उस रिस्क को जो आपने सफ़र किया है उस रिस्क को शेयर करते हैं, एंड दे हेल्प यू ऑल द इंश्योरेंस कंपनी एंड द वेरियस अदर प्रीमियम the various other investors or various other individuals who have got themselves insured from that particular company. तो वो सारे individuals भी आपके लॉस को शेयर करते हैं, आपके लॉस को रिकवर करने में हेल्प करते हैं. ओके, बिकॉज since the insurance company has understood that every year only 10 to 15 or 20% odd people will suffer the losses and the rest of 80 will not suffer the losses, so the money provided by them in the form of premium will be utilized for helping you out to recover your losses, so that risk is being shared by all the individuals who have got themselves insured from the insurance company. Okay, तो ये आपके पास है, तो वो पूल ऑफ रिसोर्सेज में से ही पैसा निकाल के देते हैं, अपने घर में से कंपनी कोई पैसा निकाल के नहीं देती.
फिर है असिस्ट इन कैपिटल फॉर्मेशन। The insurance company was raised money from the insured in the form of premium. Do not keep that funds idle with it, but rather invest those premiums into various type of investment opportunities like mutual funds, like bonds or securities or share market. Okay, thus it leads to capital formation in the economy. Like LIC has purchased shares in various types of companies. IDBI shares of IDBI has been purchased, and various other companies have been purchased. So all insurance companies, they are not giving money out of their pocket, rather they are collecting premium from the insured, and that pool of premium is then being reinvested into various types of financial instruments, from where they are earning a certain sum of money, and then out of that money dividend is being distributed, losses are being paid off by the insurance company, risk is being shared by the insurance company. So that also since it is investing into various companies, thus it is helping in the capital formation of those companies and ultimately the capital formation of the economy. So ये आपके पास another important function है। तो क्या functions हैं इसके पास? एक तो सर्टेनिटी प्रोवाइड करते हैं कि अगर आपने लॉस सफ़र किया है तो आपका लॉस हर हाल में रिकवर करवा के दिया जाएगा। वो 100% होता है, 70% होता है, 50% होता है, 80% होता है, डिपेंडिंग अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशन। वो आपका जो लॉस है रिकवर करके दिया जाएगा, मगर वो लॉस रिकवर करके दिया जाएगा हर हाल में। दैट इज़ द फाइनल थिंग। सेकेंड इज it is providing protection you against the various types of risks or losses। means कि आप अपने शांति से बिजनेस करते जाओ, और अगर आप अपना लॉस सफ़र भी करते हो, यानी अनटूवर्ड इंसिडेंट होता भी है, तो ये इंश्योरेंस कंपनी है, द इंश्योरर है, जो आपको हेल्प आउट करेगा टू कम आउट ऑफ दैट लॉस और दैट प्रॉब्लम विच यू हैव फेस्ड। Okay, financial issues you are facing, that losses will be recovered by the insurance company, so they are providing you the protection against the losses which you may face or you may have to face at any point of time while carrying out the business activity। तीसरा है रिस्क शेयरिंग। यहाँ ये रिस्क शेयरिंग का मतलब है कि यहाँ पे जो इंश्योरेंस कंपनी है वो अपनी पॉकेट से ही सिर्फ पैसा नहीं देती है, वो पैसा कलेक्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम फ्रॉम वेरियस पार्टीज। ओके, एंड दे आर हैविंग एन अंडरस्टैंडिंग कि यहाँ 10 से 15 से 20% लोग ही लॉस सफ़र करेंगे, बाकी पैसा पड़ा रहेगा बिजनेस में। तो उस पैसे में से, उस प्रीमियम में से वो पैसा निकालते हैं और आपको पे ऑफ करते हैं। तो इसका मतलब वो जो लॉस है वो सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी ही बियर नहीं कर रही है, शेयर नहीं कर रही है आपके साथ, बट उसके साथ साथ जितने और इन्वेस्टर्स हैं, जितने और पार्टीज हैं जिन्होंने इंश्योरेंस कवर लिया है, दे आर ऑल्सो शेयरिंग दैट लॉस विद यू। सो दिस मनी इज बीइंग टेकन आउट ऑफ द पूल ऑफ the funds which has been collected by the insurance company। And last one is it helps in assisting in capital formation of economy। तो यहाँ जो पैसा इंश्योरेंस कंपनी ने कलेक्ट किया था वो अपने पास आइडल नहीं रखते हैं, वो क्या करते हैं, वो पैसा निकाल के या बॉन्ड, सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, एंड थ्रू दैट इन्वेस्टमेंट they are helping in or assisting the companies in which they have invested the money to grow up their capital aspects। okay, उनकी शेयर वैल्यूज इंक्रीज करती है उसमें जब वो पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं। the companies are getting funds for carrying out the business activities smoothly, and thus it helps the economy as a whole
टू इम्प्रूव इट्स कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये इंश्योरेंस कंपनीज पैसा जो कलेक्ट करते हैं वो प्रीमियम स्टॉक मार्केट्स में लगाती हैं। स्टॉक मार्केट्स के ग्रो होने का मतलब कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज हो रही है एंड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आल्सो आर गेटिंग बेटर। सो इकोनॉमी में जो कैपिटल फॉर्मेशन है, जो पैसा चाहिए इकोनॉमी की एक्सपेंशन, ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन के लिए, वो पैसा आता है इन इंस्टीट्यूशन से। दैट इज द अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। तो ये हमारे पास फंक्शंस हैं। अब हम चलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस की तरफ। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है principles of insurance. First one is utmost good faith. utmost good faith जो है, इसका मतलब क्या है कि इंश्योरर एंड इंश्योर्ड should explain each and every aspect related to insurance। मतलब जो इंश्योरर है, मतलब इंश्योरेंस कंपनी, वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सप्लेन करेगी जब उसको प्रीमियम लेना है, कि क्या ये पॉलिसी है, किन किन केसेस में ये लॉसेस को रिकवर करने में हेल्प करती है, कितना इसमें प्रीमियम लगेगा, कितने साल तक प्रीमियम पे करना पड़ेगा, कितना आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, इन केस ऑफ प्री मेच्योर लॉसेस तो आपको कितना बेनिफिट, कब कितना बेनिफिट मिलेगा, ओके, और अगर वह मैच्योरिटी के बाद कितना पैसा आपको मिलेगा, वो सारी एक्सप्लेनेशन आपको इंश्योरेंस कंपनी द्वारा दी जानी चाहिए। ये है गुड फेथ। मतलब मैं आप में विश्वास कर रहा हूँ कि आप जो पॉलिसी मेरे को बेच रहे हो या पॉलिसी आप मेरे को प्रोवाइड कर रहे हो, जिससे आप मेरा लॉस रिकवर करने में मेरे को एक अंडरस्टैंडिंग दे रहे हो, दैट आई विल सेफगार्ड माय इंटरेस्ट विद द हेल्प ऑफ योर पॉलिसी। So how that interest is being safeguarded, the insurance company should be explaining each and every aspect related to insurance policy. And same way the insured should also explain each and every aspect related to his health, his business टू द इंश्योरेंस कंपनी। कुछ भी नहीं छुपाना। आपको मान लीजिए कि कोई हेल्थ इशू है और आप उसे छुपा जाते हो, उसे फेक कर जाते हो और बाद में वो अराइज करता है, बट दैट इज़ नॉट कवर्ड इन योर इंश्योरेंस पॉलिसी एंड इंश्योरेंस कंपनी कम्स टू नो अबाउट दैट इशू, देन यू विल नॉट बी एबल टू रिकवर द इंश्योरेंस अमाउंट फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि आपने उन्हें फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी। तो आप फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करोगे इंश्योरेंस कंपनी को, आप एक डिटेल एक्सप्लेन करोगे, कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे अपने बिजनेस के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में, जिस तरह की भी आप पॉलिसी ले रहे हो, एंड देन you can easily claim your losses from the insurance company. So both insurer and the insured should have faith in each other and should explain each and every aspect related to their business, to health, to the insurance company, and insurance company should explain each and every aspect related to the insurance policy, how it is covering up the losses, how much of the losses, what amount of premium, and to the what extent that premium has to be paid. Everything should be explained by the insurance company. तो इसे कहते हैं हम utmost good faith। ओके, अब आ जाते हैं दूसरा एलिमेंट है इंश्योरेबल इंटरेस्ट।
इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना जरूरी है जब आप क्लेम कर रहे हो। मतलब आपका एक हस्बैंड वाइफ में से अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वाइफ उसका क्लेम इसलिए कर पा रही है क्योंकि वाइफ का उसकी लाइफ में इंश्योरेबल इंटरेस्ट था, उसके ऊपर डिपेंडेंट थी, तभी उसका क्लेम वाइफ को मिल रहा है। ओके, सेम वे अगर आपने अपने बिजनेस को इंश्योर करवाया है क्योंकि आप उस बिजनेस में इंटरेस्टेड थे, आपकी जो रोजी रोटी थी उस बिजनेस के ऊपर डिपेंडेंट थी, आपकी लिविंग थी उस बिजनेस के ऊपर, आपकी लाइफ की पूरी इन्वेस्टमेंट थी उस बिजनेस के ऊपर, आपका इंटरेस्ट था, आप उसके ऑनर थे, तो आप उसका क्लेम कर सकते हो। सेम वे जिन्होंने आपको क्रेडिट दे रखा है उनको क्रेडिट रिकवर करना था आपसे, तो वो भी इंश्योरेंस कंपनी से अपना आपका इंश्योरेंस क्लेम मांग सकते हैं क्योंकि उनका इंटरेस्ट है आपके बिजनेस में, उन्होंने पैसा लगा रखा है आपके बिजनेस में, and your business has suffered the losses, so they can ask from the insurance company to pay them those claims, the credit which you have given. For example, आप जब होम लोन लेते हो तो उसके साथ उसकी इंश्योरेंस करवाई जाती है। इन केस यू डिफॉल्ट द लोन, ओके, तो इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू बैंक आपके अपने लोन की रिकवरी कर सकता है। मान लीजिए किसी की डेथ हो जाती है जो घर बना रहा है, तो इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू बैंक उस लोन की रिकवरी कर सकता है। तो ये आपके पास इंश्योरेबल इंटरेस्ट, मतलब यहाँ बैंक का इंश्योरेबल इंटरेस्ट था आपके घर में, ओके, तभी उसने इंश्योरेंस के, सिर्फ आपका अपना ही इंटरेस्ट नहीं, बैंक का भी इंटरेस्ट है, बैंक ने आपको लोन दे रखा है और बैंक को वो लोन रिकवर करना है, तो वो आपके अपने इंश्योरेबल इंटरेस्ट को दिखाएगा कि दिस इज माय पर्सनल इंटरेस्ट इनटू दिस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और दिस इंडिविजुअल, दैट्स व्हाई द क्लेम शुड बी प्रोवाइडेड, व्हाई ही शुड बी दैट ही हैज टू शो दैट इंश्योरेबल इंटरेस्ट, only then the claim will be provided to the individual concerned। अगर आप अपना इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं प्रूव कर पाते हो तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा, सिर्फ उसी को क्लेम दिया जाएगा जिसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट था उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल में। ओके, दैट इज द अनदर इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट। देन नेक्स्ट वन इज योर इंडेमनिटी। Now, principle of indemnity says that the person concerned, the business concerned who has suffered certain financial losses will be placed in the same financial position or almost same, बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं कर सकते हैं मगर उस फाइनेंशियल कंडीशन के जो फाइनेंशियल लॉसेस उसने सफ़र किए हैं उन फाइनेंशियल लॉसेस को रिकवर करने में हेल्प करती है इंश्योरेंस कंपनी। एंड दैट इज व्हाट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज, दैट इंश्योरेंस कंपनी ट्राइज यू टू बी प्लेस इन द सेम फाइनेंशियल पोजीशन और सेम स्टेट एज यू वर बिफोर द लॉसेस यू हैव सफर्ड। बट लाइफ इंश्योरेंस जो है वो इंडेमनिटी का प्रिंसिपल नहीं फॉलो करती क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में आपकी डेथ हो जाती है इंडिविजुअल की एंड नो इंश्योरेंस कंपनी कैन हेल्प यू इन रिकवरिंग द डेड पर्सन। ओके, फाइनेंशियल लॉसेस तो आपके हेल्प कर सकती है उनको रिकवर करने में, और फाइनेंशियल लॉसेस जब आप रिकवर कर लेते हो तो सेम प्लांट और मशीनरी परचेज करके आप अपने बिजनेस को कैरी आउट कर सकते हो। बट इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, life insurance contract of indemnity doesn't work because here the indemnity just only places you in the same financial position, but it does not guarantee you to recover the individual who has died. So that is why the contract of indemnity does not apply in case of life insurance,
but it applies in case of other insurances. Okay, so that is the another important aspect, that contract of indemnity is there. Fine. Then there is proximate cause. Proximate cause means the most probable reason because of which a loss has been suffered. अब ये कोई ऐरा गैरा कोई भी मतलब किसी भी कॉज को आप प्रॉक्सिमेट कॉज नहीं कह सकते हो। आपने जब एग्रीमेंट एंटर किया था, साइन किया था, तब आपने एक लिस्ट ऑफ कॉजेज लिखी हुई थी उसमें कि अगर ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, इन रीज़न से अगर आपके बिजनेस को लॉस सफ़र होता है तो उस केस में कंपनी इंश्योरेंस कंपनी और द इंश्योरर विल स्टेप इनटू योर फीट, step into your shoes, okay, and will take up the responsibility of the losses and help you recover the financial losses which you have suffered. ओके, तो यहाँ जो प्रॉक्सिमेट कॉज है वो एग्रीमेंट के अंदर कवर्ड अप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी एग्रीमेंट रीज़न है जिसके कारण आपने लॉस सफ़र किया, वो नहीं आपके क्लेम को रिकवर करने में हेल्प करेगा। Only those losses which has been already covered under the insurance company, okay, only those losses, only those most probable reasons should be used for the purpose, okay, to recover the losses. अगर वो most probable reasons आपके already नहीं कवर्ड अप हैं एग्रीमेंट में, तो आप लॉसेस को रिकवर नहीं कर सकते। तो ये प्रॉक्सिमेट कॉज का मतलब है दोज कॉजेज विच आर ऑलरेडी कवर्ड अप इन द डॉक्यूमेंट एंड हैज बीन एग्रीड अपॉन। तो वही कॉजेज को आप यूज करोगे टू रिकवर द लॉसेस, ओके। और अगर वो नहीं है, वो पैरल्स स्टेटेड नहीं है किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी में जिसके थ्रू आपने अपने आप को इंश्योर करवाया है, तो आपको वो लॉसेस नहीं रिकवर कर पाओगे। सो दैट इज द अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। देन देयर इज प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। ओके, principle of subrogation. So principle of subrogation says that the insurance company acquires the position of the insured, okay, who has suffered the losses after payment of those financial losses. मतलब मिस्टर एक्स की प्रॉपर्टी ने लॉस सफ़र किया था और उस लॉस को रीपे करने के बाद उस प्रॉपर्टी के ऑनर कौन बन जाएगी? इंश्योरेंस कंपनी बन जाएगी। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू हैव if your car or if your vehicle has met an accident and now when you have made the claims and you have recovered the claims, so whatever the scrap which has met the accident, which has been taken off from your vehicle, that asset belongs to insurance company. You can't take away that scrap on which you have made the claims that you have suffered this type of loss. So insurance company will pay for those losses and take away, and they will step into the shoes, in your shoes, becomes the owner of that particular asset and take away that particular asset which has suffered the loss, or those all equipments which has suffered the loss. So they becomes the owner under this principle of subrogation. ओके, तो ये आपके मतलब वो ऑनर बन जाते हैं जब आपको उन्होंने क्लेम दे दिया जिस एसेट के लिए, जिस प्रॉपर्टी को लॉस सफ़र किया, उसका वो ऑनर बन जाते हैं। देन लास्ट इज द प्रिंसिपल, देन नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन।
Okay, so the principle of contribution says that if you have got yourself insured from company A and company B, and at some point of time if you have suffered the loss, okay, so you will be able to recover the proportionate amount from two different companies. मान लीजिए आपने 1 करोड़ का लॉस सफ़र किया है, आपको 50 लाख की इंश्योरेंस एक कंपनी से मिली हुई है और 1.5 करोड़ की इंश्योरेंस आपने दूसरी कंपनी से ली हुई थी, तो आपको सिर्फ 1 करोड़ रुपया ही रिकवर होगा। यह नहीं कि 1 करोड़ इससे रिकवर कर लोगे और 1 करोड़ दूसरी कंपनी से रिकवर कर लोगे, ऐसा नहीं है। टोटल आपका 1 करोड़ का लॉस था, आपने 2 डिफरेंट कंपनी से अपने आप को इंश्योर करवाया हुआ था, तो दोनों कंपनीज ने मिल के उस 1 करोड़ के लॉस को रिकवर करने में आपको हेल्प करेंगे। सो दैट इज व्हाट द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन इज, दैट इफ ए कंपनी ए pays whole amount, then that company A will recover a part of his contribution from company B, but you will get only that much of the amount which you have suffered, not more than that, and that is what the principle of contribution is. Okay, तो एक्चुअल लॉस जो आपने सफर किया वही होगा। अब वो या प्रोपोर्शनेटली आपस में शेयर कर लें या वो जैसे भी शेयर करेंगे, दैट इज बिटवीन कंपनी ए एंड कंपनी बी, बट यू विल गेट ओनली द टोटल अमाउंट ऑफ लॉस यू हैव सफर्ड एंड ऑन विच योर क्लेम लाइज। उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, चाहे आपने 10 करोड़ की दो कंपनी से 10-10 करोड़ की इंश्योरेंस कवर लिया हो, मगर जितना लॉस आपने सफ़र किया उससे ज़्यादा लॉस आपको नहीं मिलेगा, चाहे वो एक कंपनी दे दे चाहे दोनों कंपनीज मिलके दे दें, प्रोपोर्शनेटली दे दें, तो वो आपका है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। ओके जी, देन लास्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। लास्ट वन इज mitigation of loss। प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस क्या कहता है कि आपको हर वो एक्ट करना पड़ेगा जिससे आप अपने लॉसेस को कम कर सकें। फॉर एग्जांपल, आपकी बाइक नॉर्मल बाइक है, कोई स्पोर्ट्स बाइक नहीं है, बट आप उस पर स्टंट मार रहे थे और स्टंट मारते मारते आपका एक्सीडेंट हो गया, तो इसमें आपकी प्रॉब्लम है, इंश्योरेंस कंपनी की प्रॉब्लम नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी ने आपके स्टंट कवर नहीं किए थे वहाँ पे। इंश्योरेंस कंपनी तो सिर्फ ये कहा था कि ओके दिस इज ए बाइक यू हैव परचेज फॉर नॉर्मल purposes, okay, but if you are doing adventures on that bike and if that bike suffers losses and in the process of adventures, then insurance company is not liable to help you in recovering the losses। तो यहाँ एक सिंपल सी बात है कि मिटिगेशन ऑफ लॉस का मतलब है यू हैव टू परफॉर्म ईच एंड एवरी सच एक्टिविटी with the help of which you can minimize the total amount of losses, and that should be visible to the party concerned, to the insurance policy, insurance company concerned। Okay, for example, if you have stored kerosene oil or petrol or you have kept gas cylinder in a cloth house, okay, and if that blast or because of that in kerosene oil or petrol there is a fire in that particular shop, or that has been the most probable reason of causing the maximum loss to the shopkeeper, then you are not liable to recover the losses because you have not taken the rightful measures to protect yourself against the losses which could have been possible। कि आपको जो मिनिमम बेसिक प्रोटेक्शन करनी है वो तो आपको करनी ही करनी है।
अगर वो करने के बावजूद आप लॉस सफ़र करते हो, then insurance company is liable to pay you the losses or help you recover those losses. But if you have not undertaken those steps to safeguard your product against the losses, then it is you who is responsible, and the insurance company may or may not give you the claim for the losses you have suffered. So that is what the principle of insurance. Okay. अब इसके बाद हम करेंगे types of insurance, life insurance, then marine insurance and fire insurance. Okay, thanks.